Hello viewers, welcome to Ibad's Biology. Today's video is about structure and functions of plant cell wall. As we all know that cell wall is the most important part of a plant cell which provides structural rigidity and proper shape to the cell as well as perform other vital roles in plants. Cell wall is a form of extracellular matrix composed of macromolecules like cellulose, hemicellulose, pectin, lignins, etc., which provide structural integrity as well as proper shape to the cell. It is the outermost layer of plant cell and distinguishes plant cell from animal cell. Now, apart from plant cells, certain prokaryotes, algae, and fungi also have cell walls. Bacterial wall is made of peptidoglycan, which is a polymer of sugar and amino acid, and the units of peptidoglycan are N-acetylmuramic acid and N-acetylglucosamine. Algal cell wall is made of cellulose, pectin, etc., while fungal cell wall is made of a nitrogen-containing polysaccharide known as chitin. As this video is about plant cell wall, we will focus on plant cell wall and bacterial wall will be discussed in a separate video in detail. Now let's talk about formation of cell wall. Well, cell wall is non-living but it is secreted by living protoplast. Cell wall formation generally starts in the center of a dividing cell, that is, its formation starts during cytokinesis or cell division. सेल डिवीजन के दौरान एक स्ट्रक्चर बनता है पेरेंटल सेल के बिल्कुल सेंटर में जिसे कहते हैं सेल प्लेट, और ये सेल प्लेट जैसे जैसे सेल डिवीजन प्रोग्रेस करता है ये सेल प्लेट ग्रो होता है पेरिफेरल रीजन्स की तरफ और फाइनली एक कंप्लीट वॉल में डिवेलप हो जाता है. ठीक है, आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं बिल्कुल सेल के सेंटर में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं सेल प्लेट या मेटाफेस प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ठीक है, और ये सेल प्लेट सेल डिवीजन के साथ साथ पेरिफेरल रीजन्स की तरफ ग्रो करता है. ठीक है, और फाइनली जब सेल डिवीजन कंप्लीट होता है तो ये सेल प्लेट सेल वॉल में डिवेलप हो जाता है और एक कंप्लीट पार्टीशन वॉल बन जाता है और दो डॉटर सेल्स को सेपरेट करता है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल. Cell wall is generally made of three fundamental layers, that is middle lamella, primary wall and secondary wall. Although some biologists do not even consider middle lamella as a part of cell wall, but in tissues the neighboring cells are held together by middle lamella, so its importance cannot be denied. Middle lamella is generally the first layer formed during cell division, and it is a thin and amorphous layer that acts as a cement to bind the adjacent cells in tissues. टिश्यूज़ में एडजेसेंट या नेबरिंग सेल्स को एक साथ रखने के लिए मिडल लेमेला एज अ बाइंडिंग मटेरियल या एज अ सीमेंट काम करता है. ठीक है, इसकी थिकनेस 1 माइक्रोमीटर होती है राउंड अबाउट, एंड इसकी कंपोजिशन जनरली इट इज़ मेड ऑफ पेक्टेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एक्सेट्रा. और वुडी टिश्यूज़ में ये लेयर, ये मिडल लेमेला लेयर, ये जनरली लेग्निफाइड होता है, इस पे लेग्निन की डिपोजिशन होती है. इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं ये मुख्तलिफ लेयर सेल वॉल के. ये लेयर ब्लैक कलर वाला ये मिडल लेमेला को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, दिस इज़ मिडल लेमेला. इसके अंदर ये जो ग्रीन लेयर है ये प्राइमरी वॉल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और ये जो बड़ा वाला लेयर है रेड कलर में प्राइमरी वॉल के अंदर ये सेकेंडरी वॉल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, उसके अंदर फिर ये वाला लेयर सेल मेम्ब्रेन और दिस वन इज सेल ल्यूमेन और साइटोप्लाज्म. ठीक है, अब आप लोग ये जो मिडल लेमेला है ब्लैक लेयर, इसके बाहर अगर आप लोग देखें तो ये ग्रीन लेयर्स, ये और ये जो सराउंडिंग सेल्स हैं उसके प्राइमरी वॉल को ये रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, सो वी कैन से दैट middle lamella is a binding material that is filled in the intercellular spaces and binds or hold the cells together. Now we will talk about primary wall.
Primary wall is formed inside middle lamella and its thickness is round about 0.1 micrometer. It is thin and elastic layer, and due to its elastic nature it allows cell wall expansion during growth. इसकी elasticity की वजह से ये cell wall expansion को allow करता है growth के दौरान primary wall. ठीक है, ये generally जो actively growing regions हैं जहाँ पे secondary growth नहीं हुई होती उसमें ये वाहिद सेल वॉल लेयर है जहाँ पे सेकेंडरी वॉल जनरली नहीं बनता. सो एक्टिवली ग्रोइंग रीजन्स में सिर्फ प्राइमरी वॉल बनता है. ठीक है, इट इज़ जनरली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स दैट इज सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन कंपाउंड्स. सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज अ लीनियर अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग एटलीस्ट 500 ग्लूकोज रेसिड्यूज. ठीक है, ग्लूकोज सेलुलोज एक अनब्रांच्ड चेन है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, इसमें 500 से लेके थाउजेंड्स तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये नेचर में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा या एबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज. ठीक है, नाउ पेक्टिन इज़ अ हाईली हाइड्रेटेड नेटवर्क ऑफ कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड रिच इन गैलेक्ट्रॉनिक एसिड. ये एक कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जनरली और इसमें गैलेक्ट्रॉनिक एसिड ज़्यादा पाया जाता है. Pectin, it forms the matrix in which cellulose is embedded. ठीक है, पेक्टिन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है, एक 3D नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें सेलुलोज एम्बेडेड होता है और ये प्राइमरी वॉल को मिडिल लेमेला के साथ लिंक करता है. इसी तरह ये सेल्स को बाइंड या एक साथ रखने में हेल्प करता है. आप लोग देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे ये मिडिल लेमेला है और ये है प्राइमरी वॉल. ठीक है, अब यहाँ पे हम पेक्टिन की बात करते हैं. ये एक मैट्रिक्स या नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो कि प्राइमरी वॉल को मिडिल लेमेला के साथ लिंक करता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की. सेकेंडरी वॉल इज जनरली थिकर राउंड अबाउट 5 to 10 micrometer in thickness and it is laid down inside primary wall in some tissues. ठीक है, सेकेंडरी वॉल प्राइमरी वॉल के अंदर बनता है सेल ल्यूमेन की तरफ और ये सारे टिश्यूज़ में नहीं बनता. सेकेंडरी वॉल कुछ टिश्यूज़ में बनता है, सारे टिश्यूज़ में नहीं बनता. ठीक है, इट इज़ जनरली लिग्निफाइड and due to its lignified nature it provides mechanical strength and rigidity to the plant cell. ठीक है, लिग्निन एक कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है जो कि जनरली वॉस्कुलर प्लांट्स में पाया जाता है और जिसकी वजह से प्लांट सेल वॉल में रिजिडिटी आती है. तो इस लिग्निफाइड नेचर की वजह से ये सेल वॉल एक्सपेंशन को अलाउ नहीं करता और प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, मेन कंपोनेंट सेकेंडरी वॉल की ये पेक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड लिग्निन से बना है. ठीक है, पेक्टिन की हमने पहले ही बात की कि एक कम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड है. सेलुलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग एटलीस्ट 500 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स and hemicellulose is a polymer or a polysaccharide like cellulose but it is branched in nature. ठीक है, lignin is a complex organic molecule or organic polymer found in vascular plants as a main supporting tissue. ठीक है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसकी रिजिडिटी की वजह से. इन मॉलिक्यूल्स के अलावा सेकेंडरी वॉल में कुछ नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स और कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम के साल्ट्स प्लस सम सिलिका भी पाया जाता है. ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ प्लांट सेल वॉल. प्लांट सेल वॉल हैव वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन अ फ्यू आर डिस्कस्ड हियर. सबसे पहले हम स्केलेटल रोल की बात करते हैं. Because of its lignified and rigid nature, plant cell wall provide proper shape and structural integrity to the cell. ठीक है, lignified और रिजिड नेचर की वजह से सेल वॉल सेल को प्रॉपर शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. इसके अलावा इसका प्रोटेक्टिव रोल ये है कि ये सेलुलर ऑर्गेनेल्स को मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है. थर्ड फंक्शन इज़ ट्रांसपोर्ट रोल. सेल वॉल में छोटे छोटे चैनल्स होते हैं या पोर्स होते हैं जिनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं और इन प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू
नेबरिंग सेल के आपस में मटेरियल एक्सचेंज होते हैं, या हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इन प्लाज्मोडेस्मेटा के ज़रिए होती है। ठीक है, नेबरिंग सेल्स आपस में मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा कुछ पोर्स और रिसेप्टर्स होते हैं सेल वॉल पे, जो कि वाटर और मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं या उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा सेल वॉल रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। कौन से सब्सटेंसेस सेल में एंटर हो सकते हैं, कौन से सब्सटेंसेस सेल से एग्जिट हो सकते हैं, सेल से बाहर जा सकते हैं, ये सेल वॉल रेगुलेट करता है। ठीक है, एज अ रिसेप्टर साइट, सेल वॉल एज अ रिसेप्टर साइट काम करता है कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए, कुछ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के लिए। सेल वॉल पे कुछ प्रोटीन्स अटैच होते हैं जो कि एज अ रिसेप्टर्स काम करते हैं और पैथोजेनिक माइक्रोब्स को डिटेक्ट करते हैं सेल के सराउंडिंग में। ठीक है, इसके अलावा ये सेल को एक्सटर्नल स्ट्रेसेस से डिफेंड करता है। इट डिफेंड सेल फ्रॉम एक्सटर्नल स्ट्रेसेस। इसके अलावा सेल वॉल का जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये सेल एक्सपेंशन को रेगुलेट करता है ड्यूरिंग सेल ग्रोथ। ठीक है, और ओवर एक्सपेंशन एंड सेल बर्स्टिंग को प्रिवेंट करता है। जब सेल वाटर एब्जॉर्ब करता है तो एक्सपैंड होता है, लेकिन सेल वॉल इसको ओवर एक्सपेंशन से रोकता है बिकॉज ऑफ इट्स रिजिड नेचर। ठीक है, so it was all about structure and functions of cell wall. That's all for now. See you in the next video. Thank you.